Labubu girl or matcha girl? See, both of these Both are trends shit, I would are say. absolutely shit. But bro, Labubu is so overpriced. बॉयज बचपन में से बेब्लेड लेते थे, या तो अभी भी नॉर्थ हमें लेने का ऐसे मन तो करता है भाई. बेंचो तू 250 रुपए के बेलेट को 4000 रुपए का Labubu से कंपेयर मत कर. Oh, this one is for you, bro. Father's side or mother's side? 100% mother's side. Father's side is shit. डाल देना फैमिली ग्रुप मेरे को नहीं फर्क पड़ता. Chakli with Szechuan sauce or masala papad? I think this is a very tough one, bro. I think this is the toughest question of them all. Hello. Let's go. Another episode of Imposters, and today we have the this or that segment. Yes, sir. So let's get right into it. Or a deep dive. Deep dive into it. Shoot the first one, sir. Yeah. Let's go. Let's go. Deepika Padukone or Alia Bhatt? It's going to be an easy answer for me, Alia, but I hate Deepika Padukone, bro. It's like she's the fakest person in this Bollywood industry. And I mean, when it comes to a relationship or herself, as far as what I have heard, Rumors? Rumors, You yeah. want to go there after all we went through last time? but nah, I don't like her. Like personally, I prefer short girls. Like dating a tall girl is like dating a guy. I don't want to be Okay. with a guy as much as I look like a gay person, I'm not. And yeah, bro, I think she's very fake. I And think you are going to talk about her acting rather than her being tall or short. just preference, bro. Just Yeah. preference. और मेरे को पसंद ही नहीं. Yeah. मतलब acting भी इतनी. I think she's very overrated, bro. Yeah. मतलब acting is also very mid. ऐसा नहीं है कि ठीक है उसके pictures काफी अच्छे चले हैं, but acting is also very mid. And personality wise also, I don't think she's a very I don't know a girlfriend or a wife material. So in terms of the acting part, I kind of agree because I feel that her acting, her expressions, her dialogue delivery, the voice modulation is almost like similar in almost all the movies Correct. except Chennai Express. है ना, like you know that was something very different. Yeah. But in case of being an independent female lead, I think Alia Bhatt has done a bit better in terms of Gangubai, Razi, Yeah. Um, Gully Boy. मतलब कि like I am saying कि like Pure, वो जिसमें थी हाँ, like you know independent correct, female हाँ. lead, Yeah. वो कौन सी आई थी विदांग रायना के साथ? Jigra. Jigra. Correct. Yeah, so in Yeah. terms of if you see you know Jigra, Razi, Hmm. क्या कहते हैं उसको, गंगूबाई, Yeah. तो I think acting wise Alia Bhatt is 2 tiers above, I would say. Yeah. Because I'm just tired of Deepika doing the same expressions, the same voice modulation, the same dialogue delivery. मतलब बस अभी हो एक गया. टाइम पे she used to play that victim card way too often. मतलब ऐसे सबको ऐसे Hmm. बता देती कि ठीक है I'm the victim, whatever. ठीक है रणबीर whatever did something wrong with her, but बस भाई ठीक है. और acting wise, look wise भी I don't think she's extremely Hmm. gorgeous. मतलब Alia Bhatt is insane. Alia Bhatt is top notch. Absolutely. Yeah, Deepika overall only she's over it. As Shanti Priya, she was too pretty Yeah. Yeah. back in the day. Yeah, that's true. But I don't know. Post pregnancy. ये काट देना. Next one. Dog person or Hmm. cat person? Which one would you prefer? See, I myself am like a cat person in terms of I think personality because I'm very lazy and I don't like to give a fuck that much. तो मेरे को बस है कि बस मेरे को पड़े रहना, मेरे को परेशान मत करो, मैं बस हूँ वहाँ पर. आई एम जस्ट एग्जिस्टिंग देयर. And who do I like to interact with is a person who's a dog person. dog person. Yeah, Those are relationships. yeah, because they are so positive, so jolly, like you know, Yeah. high on energy all the time. They'll take care of you and all those Yeah. things, and that's what a cat person actually wants. Correct. कि मेरे को Yeah. तेरे लिए कुछ ना करना पड़े, but तू मेरे लिए सब कुछ करे. Hmm. तू लाइट ठीक कर, मैं बैठा रहूं. भाई कुछ ज्यादा नहीं लेट हो गया. But भाई मेरा आता है तो dog person. I don't get the point of having a cat, bro. Like Yeah, cats don't give a fuck about anyone and anybody, bro. Absolutely. Even if you don't come home, they'll be like, fuck it, bro. मेरे को क्या है, घर पे ही बैठी हूँ. You don't have to take them down yeah. and you don't have to love them. अगर कभी कभी तुमको प्यार भी करने आते हो, they're like, bro, fuck off. Yeah. Just give me my space. भाई कुत्ते ऐसे तुम्हें देख के ऐसे रोना जाता है उनको कि भाई घर आ गया ये वो fuck ऐसे it genuinely feel like somebody is Yeah. waiting for you at home. Any day dog person, bro. Yeah, and actually, I feel that if you die, also the cat will probably eat you. Is Yeah. that true? Yeah, that is what I've heard. Yeah. Which I feel like कि मैं भी थोड़ा वैसा ही हूँ, मेरे को लगता है. मतलब मैं ऐसा कुछ खा नहीं जाऊंगा, बट अब कोई मर गया, अगर उसका लाइक यू नो अस्तित्व नहीं है, तो उसको यूज कर लो ना उससे अच्छा. बस भाई बस.
Next one. Labubu girl or matcha girl? See, both of these Both are trends shit, I are would say. absolutely shit. But honestly, I wouldn't be with a matcha girl because 90% of the matcha girls just pretend to like matcha, honestly. I don't think they are really into it because it genuinely tastes like grass and Yeah. it's so grainy. And मैंने जितने भी लोग देखा ना, ठीक है, 2 matcha का trend आ गया, तभी से ही, oh, I'm a matcha girl. I Yep. have been drinking matcha since so long. Yeah. Bro, it's shit. Like, you are just being pretentious. You don't हाँ. have a personality. You are just fitting into the trend that's going on social media. Labubu is also a trend only, but matcha is fake. You can see it. But bro, Labubu is so overpriced. What is I like know. 4,000 rupees? I know, but For at a least, thing, and what does the teddy bear? It's a teddy bear. चल ठीक है, लबूबू का मुझे ये समझ में आता है कि चल हम बॉयज बचपन में से बेब्लेड लेते थे, या तो Yeah. अभी भी नॉर्फ हमें लेने का ऐसे मन तो करता है भाई. बेंचो तू 250 रुपए के बेल्डेड को 4,000 रुपए का Labubu से कंपेयर मत कर. मतलब ठीक है, बोलते हैं ना, लबूबू इज एन एक्सेसरी. आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड. मेरे Yeah. हिसाब से बोथ आर शिट, बट Yeah. इट्स लाइक बेस्ट ऑफ वर्स्ट. तो लबूबू चल ठीक है, चल बैग में टांग रहे हो, इट्स अ लिटिल क्यूट फॉर सम, बट matcha is genuinely fake. I don't think anyone can actually like matcha, bro. माचा का मेरे हिसाब से कि सी एट द एंड इट्स अ कंजम्पशन थिंग, है ना? इट्स एन एडिबल. तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने उस पर एक बार जितने भी पैसे खर्च किए, तुम उसको खा रहे हो, पी रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है. विद Labubu आई फील उसको खरीद लिया, उसका क्या उसका यूज क्या है? It's just like a showpiece, just like a small, like wannabe teddy bear or something. And $4,000 मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब I don't like understand the demand supply of this toy, to be very honest. And I think if I would date a matcha girl, especially if she tries to monetize it. कि तू कुछ धंधा कर, तो उसके ऊपर कंटेंट बना, उसके और देख इंडिया का ऑडियंस चुतिया है ना? तू बस बेचने का ट्राई कर, लोग खरीद लेंगे, वो तो है ना? तो मेरे को लगता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, है ना, फिर आउट ऑफ इट ग्रेट. बट वही, मतलब तू सेम चीज तू लबूबू के साथ भी तो कर सकता है भाई. मतलब मार्केट का ऑडियंस चुतिया है. बट भाई हाँ, matcha is probably because I have seen people who are just pretending to like matcha. Yeah, even I agree. I think almost half of them to like just pretending. Yep. Just pretending. Next one, a banger one. Diljit Dosanjh or AP Dillon? In terms of music, I would say I don't have much to say, to be very honest, because like दोनों के बहुत सारे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है. हाँ. Like see, like AP का दिल नू, वो नूर, With you. अभी वो थोड़ी सी दारू. वो तो पूरा शिनचान का ठीक है, चलो वो तो कॉपी बनाया उससे चूतिया ने. बट मेरे को तो बहुत मस्त लगता है. हाँ, अच्छा है, मतलब कि इट्स लाइक फन टू जैम टू एंड जस्ट लाइक डांस ऐसा. अच्छा है. वो लाइक सबसे फेमस कौन सा हुआ था? एक्सक्यूजेस. वो तो जब एकदम हार्ट ब्रेक हुआ था तो वो गाना सबसे पहले सुनने का. तो ये सब गाने लाइक ऑनेस्टली वर टू गुड. लाइक अभी भी दिल नू बजे तो इट्स लाइक टॉप टियर गाना है दिल नू. तो in terms of Diljit also, I think the songs are, पता नहीं यार, I don't have much to contribute here. Please step in. For me, Diljit the concert I've attended, and it was a banging concert, but half of the songs were very new and I couldn't understand because पंजाबी के थे. और मेरे को एक पॉइंट का लगा कि सब सॉन्ग्स बहुत ड्रैग हो रहे हैं. कि पंजाबी में तो एक पॉइंट के बाद you can't even sing along, कि ठीक है थोड़े एक दो पंचेस पता है. For me, tough choice, but AP bro. मतलब जितना भी उसको बोल लो ऑटो ट्यून मास्टर, जितना भी बोल दो उसको गाना नहीं आता, बट उसके गाने सुन के ना ब्रो, इट जस्ट फील्स ऐसा वाइब है, सूदिंग वाइब है, ऐसा कुछ तो है. और कभी भी सुन सकते हो गाने, और सब गाने क्योंकि गा भी सकते हैं. आई थिंक इसके पंजाबी वर्ड इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे दिलजीत के. और दिलजीत के लिए एक ऐसा मूड चाहिए कि एकदम वो पार्टी. ये दिल्लू में खुश हूँ तभी भी सुनता हूँ, दुखी हूँ तभी भी सुनता हूँ, वैसा. करेक्ट. आई थिंक दिलजीत के सॉन्ग्स आर मोर एनर्जेटिक. इट्स लाइक कि वो गाने जो सब एकदम प्रॉपर क्लब में बजेंगे, वो ये सब फिर वो सब सॉन्ग्स है. बट लाइक यू एकदम एब्सोल्युटली राइटली सेड कि एपी का इज लाइक कि तुम कोई भी मूड में हो एंड यू जस्ट नीड टू जस्ट ग्रूव अ लिटिल बिट. चाहे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ हो कि तुम खुश भी हो, इट्स जस्ट अ गुड सॉन्ग टू लिसन टू. 100%. नेक्स्ट वन, डाइट कोक और रेड बुल. I would honestly prefer Red Bull. ना तो डाइट कोक भाई हेल्दी बोल के तुम पी रहे हो, बट कुछ हेल्दी तो है नहीं भाई. मतलब पीना ही है तो एटलीस्ट रेड बुल से थोड़ी बहुत एनर्जी तो आती है. डाइट कोक से एनर्जी भी नहीं आती. तुम बोलते हो कि ब्रो इट्स वेरी हेल्दी, यू शुड हैव इट एवरी डे. ब्रो कुछ नहीं होगा ब्रो, डाइट कोक तो है. मतलब मैं तो हेल्दी बोल के नहीं पीता. आई जस्ट लाइक द टेस्ट. और
लाइक यू नो मेरा डाइट कोक पीने का एक तरीका है, मैं लेता हूँ उसके अंदर बहुत सारा सब ये क्या अपना फिर क्या कहते हैं आइस डालता हूँ, हाँ उसके ऊपर बहुत सारा नींबू निचोड़ देता हूँ मैं, हाँ एंड आई जस्ट लाइक इट दैट वे. या अब वो आजकल तो लोग क्या क्या बनाते हैं, लाइक यू नो फिर ऑरेंज का थोड़ा वो डालते हैं, पल्प डालते हैं, कॉफी डालते हैं. मेरे ऑफिस में कितने लोग हैं भाई, मतलब हम्म. ऐसे लंच के बाद डाइट कोक तो फिक्स है भाई, पीना ही है. और मैं डेली यू कांट डू हाँ, यार, टू बी हाँ, ऑनेस्ट. वही मैं ऑनेस्टली दोनों ही नहीं पीता हूँ, डाइट कोक रेड बुल. बैरली में रेड बुल थोड़ा सा बीच में पीना चालू किया था, बट और मतलब ऐसे डाइट कोक ठीक है, अच्छा लगता है जैसे तूने लाइम वाइम के साथ हाँ. बोला, बट मेरे को प्रॉपर अगर एनर्जी चाहिए ना, आई एम फीलिंग लो और मेरे को Yeah. जेन्युइनली स्पाइक करने के लिए चाहिए, आई विल गो फॉर रेड बुल फॉर श्योर. Yeah, probably. I think it has a lot of caffeine, या which I don't prefer a lot. या And if I'm having caffeine, I'd rather have some normal coffee, thoda sa. So, like, you know, that's my take. But yeah, I saw this guy drink Red Bull for breakfast one day, if I'm not wrong. या तो मैं बोला, like, he's क्या बोलते उसको, Red Bull पगलू, as the word goes. साबूदाना रेड बुल का कॉम्बिनेशन है. हाँ, that was some insane thing that I heard for the first time. Oh, this one is for you, bro. Father's side or mother's side? 100% mother's side. Father's side is shit. It's trash. सब बहनचोद सब सांप है, सब जोकर है, सबके गांड में अक्कल है. जीरो सेंस, जीरो लॉजिक. डाल देना फैमिली ग्रुप पे. मेरे को नहीं फर्क पड़ता. बट आई थिंक in 80% of the cases I think it's mother's side in 80% of the cases that I've also seen, because everyone is like कि हाँ यार मेरी भी बुआ मादर चोद है भाई. साला मेरा भी चाचा चूतिया, साला एकदम हाथ जमा के बैठा प्रॉपर्टी पे, ये वो हर एक को कुछ ना कुछ है ही. बट अच्छा बनता है मामा के साथ, है ना, ये क्या बोलते हैं सब मासी लोग के साथ, लाइक एकदम अच्छा बनता है हर एक का. फॉर मी उल्टा. ऐसे मेरे क्योंकि फादर के साइड पे काफी कजिन वजिन है, और आई एम नॉट दैट क्लोज, बट अभी वो एज आ गया कि ठीक है ऐसे मिलते हैं तो ऐसे बात करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं. एंड मेरे मॉम के साइड पे तो कोई कजिन्स नहीं है, इवन दो ऐसे दोनों टचवुड बहुत पीसफुल है, ऐसा नहीं कोई भी कलेश होता है. तो बट इन दी एंड अगर मेरे को हैंग आउट करना है, मैं फादर के साइड की फैमिली का हैंग आउट करूंगा, जस्ट बिकॉज मेरी More cousins थोड़े लोग, हाँ, जस्ट फॉर कजिन्स. या नेक्स्ट वन, सॉरी रॉन्ग एक्सप्रेशन. पुणे चिक और दिल्ली चिक? आई मीन ज्यादा अच्छे ऑप्शन तो दिए नहीं तूने, बट आई वुड प्रेफर दिल्ली चिक, इवन दो दे आर अनोइंग एज फक, बट एटलीस्ट बात करना आता है, चिल बंदे, ऐसे बंदे ही है भाई इन दी एंड. वैसे भाई अपने सब भाई आराम से चिल कर सकते हो. पुणे चिक भाई आफ्टर अ पॉइंट आई फील लाइक bro, you are sleeping with 10 of your guy friends only because everyone has slept with everyone. Yeah, it's like a group project. Yeah, exactly. Everyone has taken part in it, but only one person has done it nicely. That is true, and I don't think it will last also, because एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे वो सर्कल चलते ही रहता है, आई थिंक. एंड इमेच्योरिटी भी काफ़ी है पुणे वाली बंदियों में, कभी बड़े ही नहीं हुए. तो दिल्ली पीपल आर वेरी नाइस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, and बात करने में मजा आता है, funny as well, and a very good vibe. So yeah, can you please elaborate on your Pune bit? वो actually मेरे को समझा नहीं थोड़ा. जिसको समझा था समझ गया. किसको समझा रहा है वही तो. ठीक है, let's go. Next one, घेवर और रसगुल्ला? घेवर any day, every day. घेवर I feel is a top 3 मिठाई. Rasgulla, I feel, is way too overrated. It's the most overhyped Indian mithai ever. Because it feels like sponge to me. उसके ऊपर उसका वो जो पूरा वो चाशनी बोल लो या जो भी बोलो, उसका पूरा जो वो गिरता है रस, एंड पूरे हाथ गंदे हो जाते हैं. मतलब कि ठीक है, इट्स लाइक एन ओके थिंग, बट आई फील उसको बेफालतू का ऐसा हाइप करके रखा है ना. लाइक भाई तुम घेवर खाओ कभी, लाइक एकदम प्रॉपर घेवर, उसके ऊपर घी भी मस्त एकदम लगा होता है. आई थिंक रसगुल्ला इज way too overrated, hyped. I don't give a fuck. Cancel it. I love रसगुल्ला bro. Fuck off. मैंने कभी ऐसा घेवर ऐसा ट्राई नहीं किया. आई थिंक एक बार किया रहेगा, बट मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को याद भी नहीं रहेगा कि घेवर एग्जैक्टली इसको बोलते हैं. रसगुल्ला ठीक है भाई, ऐसे इट्स वेरी क्या बोलते हैं, वेरी स्वीट, वो रस गिरता है, बट पता नहीं भाई, रसगुल्ला आई थिंक इज माइल्स बेटर. तेरे को पता भी नहीं दूसरा ऑप्शन है तो क्या बोल रहा है माइल्स बेटर? भाई ऐसे जो जितना पता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ भाई. अच्छा, सो टेल मी, लाइक यू नो, व्हाट्स योर टॉप 3 इंडियन मिठाईज? टॉप 3 इंडियन मिठाईज?
Firstly, I don't think a lot of people know about it. It's क्या बोलते हैं, सेव की एक बर्फी आती है, ठीक है, जो झामा में मिलती है या तो किधर तो मिलती है, थारू में मिलती है, एक सिंधी मिठाई है, सेव की बर्फी. I absolutely love it. Second is a very basic one, gulab jamun. Garam gulab jamun. I don't think anything can beat it. And third, I'll pick rasgulla. बस जाम मुझे उस कंटेंट में घुसाना है. Of course. Your top 3. My top 3 would be, so in no particular order, I think gulab jamun, ghevar, and third would be, I think, a tie-up between, let's say, like a normal peda, मतलब कि like just a normal peda, and I think मोदक. मतलब अभी है जस्ट गणपति सीजन, 14 एपिसोड पहले आ चुका था, बट आई लव मोदक. Okay, next one. Dairy Milk or Kit Kat? Honestly, I would go for Dairy Milk Silk Oreo. I think that has to be top tier. बोलते हैं ना, इससे बेटर चॉकलेट कभी बना ही नहीं है. ये सब पैसे वालों के चोचले बैठते हो. अभी it is what it is. भाई Kit Kat is also banger, but वो Dairy Milk Silk Oreo खा के ना ऐसे लगता है कि तुमने लंच कर लिया है, तुम्हें और कुछ खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इतना भी होता है. प्लस इट्स अ मिक्सचर ऑफ चॉकलेट प्लस ओरियो. आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बीट दैट. भाई मतलब क्या सोच के बनाया था. एक टाइम पे मैं बहुत ये क्या बोलते हैं मिल्की बार खाता था. दैट वाज आल्सो फकिंग वंडरफुल. बट अगर मेरे को मिल्की बार और सिल्क ओरियो में चूज करना पड़े ना, आई स्टिल चूज सिल्क ओरियो. फॉर मी इट्स आल्सो डेयरी मिल्क, बट इट्स डेयरी मिल्क सिल्क नॉर्मल, बिकॉज like somehow I don't like something crunchy when it comes in my chocolate. So that's why that fruit and nut is trash. भाई मेरे को इतना irritating लगता है वो बहन जो साला बादाम आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, सबसे वो जिसने भी बना एकदम फालतू है वो. खाना तो अच्छे से खराब खाने का, एकदम बादाम क्यों डाल रहे हो. हाँ एकदम फालतू है वो तो. I think Kit Kat is good in terms of convenience. वो उसको बस खोला काट दिया. अच्छा, so tell me what's the right way to eat a Kit Kat? That डंडी बाय डंडी और एक साथ like a whole एक बाइट ले लो. For me is डंडी बाय डंडी. डंडी बाय डंडी. Yeah, it's very satisfying to break it, क्योंकि बहुत इजीली ब्रेक होता है. और एक एक करके तो पूरा खाते हो ना, पूरा ऑर्डर खराब हो जाता है भाई. मतलब फिर मजा नहीं आता. हाँ, वो क्योंकि फिर लास्ट बाइट तक आते हैं, लास्ट डंडी, so you savor it properly. मैं तो क्या चुतियाप करता था कि I think that I used to give a blow job to that डंडी of that Kit Kat. तो मैं उसका पहले पूरा चॉकलेट खा लेता था. देन खाली बस बचता था वेफर, उसको मैं अलग से खाता था. पता नहीं क्यों. Just childhood things. Yeah, bro. Yes, bro. नहीं मस्ती करो. Next one. Chakli with Szechuan sauce or masala papad. I think this is a very tough one, bro. I think this is the toughest question of them all. Yeah. I think like this is the tougher. I think this question is way tougher than my CA final audit paper. I'm not gonna lie about it. तूने क्या देखा पता? CPD. No. Yeah, it's very tough, yeah. I see. So, masala papad is an evergreen food. Yeah. It's an evergreen. I wouldn't call it chakna, but it's an evergreen starter. Yeah. I think chakli with Szechuan sauce is what people would eat when they're having a drink. Yeah. So, if it's mahol specific, right, then it's your chakli with Szechuan sauce. But if it's just versatility. Yeah. Then bro, it's your proper masala papad. I think this and we ate chicken masala papad in Ahmedabad. In Ahmedabad. That was fucking insane. Yeah, bro. Out of all the places, Ahmedabad. पर मजा आया था वो भी खा के. But I think this is the right way to answer it. But if I have to pick one, I think I'll go with masala papad. I think chakli Szechuan sauce इतना भी famous नहीं है. मतलब हम जेंजी ने काफी ये किया है कि हाँ चल खाते हैं बियर के साथ. बट मसाला पापड़ डैड, हमारे दादू से सब बैठ के खाते थे ऐसे. वो एक काफी टाइम से चल रहा है एंड इट्स स्टिल गोइंग. इट शोज दैट इट्स टॉप नॉच, ब्रो. नहीं, आई थिंक चकली भी बहुत टाइम से ही है. चकली पर शेजवान सॉस के साथ ऐसा इतना लोग नहीं खाते हैं जितना मेरे को अभी काफी मैंने देखा है कि आसपास लोग ये बहुत. Who told you? Your dad told you? You speak to your dad? Let's not go there, man. In almost every episode or every alternate episode, Nikhil's father, Nikhil's mother, and his girlfriend, everyone comes somehow in the me being gay, which I'm not. Okay, next one. Rebel Kid
और साक्षी शिवदसानी. Oh, who's the more annoying one? Let's say who has better content. Who has better content? I honestly think at Alvesh the Yadav. moment, at this point of time, is going to be Sakshi Shivdasani because Rebel Yep. Kid सिर्फ पार्टी कर रही है भाई. मैं उसको फॉलो करता हूँ. वो जेन्युइनली उसका कंटेंट ही है कि ब्रो आई वांट टू हैंग आउट विद पीपल हु पार्टी. आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद पीपल हु कैन नॉट पार्टी लाइक मी. इट शोज दैट इमेच्योरिटी. इट शोज दैट कि भाई ठीक है तुम्हारी लाइफ ही नहीं है कि तुम पार्टी वार्टी कर रहे हो. साक्षी के पास एटलीस्ट भाई उसने कंटेंट बनाया एंड शी इज काइंड ऑफ फनी ब्रो. लाइक शी इज अनोइंग, हर वॉइस इज स्क्वीकी एंड ऑल दैट, बट शी इज काइंड ऑफ फनी एंड शी हैज अ पॉडकास्ट Yep. which is a very big deal. Like running a podcast, We know. we know how big of a deal it is. तो रेबेल It किड तो is. मेरे को जेन्युइनली बहुत इमेच्योर लगने लगी है भाई. वो ठीक है, वो मतलब बहुत ओपन है, वो गाली वाली देती है, उसने कंटेंट भी काफी कर लिया है, बट अभी तो उसके सोशल पे सिर्फ इमेच्योरिटी दिखता है भाई मेरे को. कि रोज पार्टी करो, पार्टी नहीं करोगे तो वो बोरिंग. पार्टी से ज्यादा आई फील कंट्रोवर्सी यार, बेफालतू के कंट्रोवर्सीज. एंड आई डोंट नो इफ शी इज प्लांटिंग देम कि ऑटोमेटिकली हो रहा है कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स जो उसके दोस्त थे वो उससे लड़ रहे हैं. मतलब आई एम नॉट टू एक्टिव एंड आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड कि मतलब लाइक टू आल्सो नो कि क्या चल रहा है उस समय. बट आई नो यू मेड सम कंटेंट अबाउट इट. वन थिंग आई हर्ड, ये जो इसका सीन चल रहा है, ये सूफी या मोती वाला, हाँ ये सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, इट्स अ वेरी बिग पीआर मूव. क्योंकि ये मैंने जितना सुना है कि सबका पीआर एजेंसी इज द सेम. And they are a big show is coming up. Something is coming up and this is just a way to hype it up. That's what I probably ये सब हो सकता है क्योंकि मतलब क्योंकि see मैं जब भी थोड़ा बहुत जाता हूँ इंस्टाग्राम पे और मेरी फीड में ये सब लाइक यू नो इन्फ्लुएंसर गॉसिप एंड कंट्रोवर्सी आता है ना, मैं बोला तुम खुद को क्या समझते हो बहनचोद आज कुछ हो 3 साल बाद इररेलेवेंट हो जाओगे. और तुम मतलब हो कौन और क्यों वाई, और इतना छोटी छोटी बातों पे कंट्रोवर्सी करना मेरे को समझता नहीं है. मेरे को ये सब चीजें स्टूपिड लगती है. और उसके वो फैन गर्ल जो उसको मदर बुलाते हैं, जो हाइप करते हैं, अरे वो उस बंदे को डेट कर रही थी, उसका और उस बंदे का फैन पेज बना दिया था एंड दे आर कॉलिंग दैट गाय उत्सव जीजू एंड ऑल. एंड जब ब्रेकअप हुआ फिर उसको गाली दे रहे हैं. तो मैंने बोला कि ये मतलब ये बस दिखाता है कि उसके सारे फैंस आर इन 5th and 6th स्टैंडर्ड, 100% मैक्स टू मैक्स 7th स्टैंडर्ड. आई जस्ट गिव हर दैट. बट उससे ज्यादा मतलब एटलीस्ट साक्षी का ये सब नहीं है, इतना बोल सकते हैं. और रेबेल किड का भाई ठीक है, एक कंट्रोवर्सी हो गया, 2 कंट्रोवर्सी हो गया. आई थिंक ब्रो इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान कि एक जाता है उसका 10 दिन में दूसरा आ जाता है, 10 दिन में तीसरा आ जाता है. ब्रो शी इज डूइंग इट ऑन पर्पस कि ठीक है ट्रेटर्स के बाद तो काफी सबने सुना है कि भाई उसका एटीट्यूड तो नेक्स्ट लेवल पे हो गया एंड शी इज फीडिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस. भाई वो उसको मजे आ रहे कि भाई लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. मेरे को लगता है वो जेन्युइनली ओरी है, बट थोड़ी यंगर वर्जन और मोर अनोइंग वर्जन ऑफ ओरी. ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि उसके पास ना प्रॉपर बुआ क्वालिटीज है, वो ना बड़ी होके बहुत अच्छी बुआ बनेगी. 100%. मतलब जो ऐसा बस बोलते हैं ना कि बस मसाला चाहिए कहीं ना कहीं से. एंड अगर मेरे बारे में भी लोग एकदम बकवास बातें कर रहे हैं बट मैं लाइमलाइट में हूँ, आई डोंट गिव अ फक. मेरे को बस लाइक यू नो बस ऑनलाइन जाके बस चेक करना है गॉसिप. मैं खुद ही जाऊंगा या फिर जाऊंगी ऑन इंस्टा सेलेब्स गॉसिप ऑन रेडिट एंड आई टाइप शिट अबाउट माई सेल्फ. बिकॉज क्या ही फर्क पड़ता है, इज्जत नाम की चीज क्या ही है भाई, पैसे आ रहे हैं. Clearly working for her, you're also talking about her. Okay. Nice PR move, Rebel Kid. Nice PR move. Next one. Om Shanti Om और मैं हूं ना. Oh bro, I think this is going to be extremely gross, but sticking to my first point, since I don't like Deepika Padukone, I'm going to pick मैं हूं ना. क्योंकि मैं हूं ना के गाने भी like I think each and every song was a banger. और क्या बोलते हैं मतलब आइकॉनिक सीन्स इतने हैं कि वो थूकता है, वो बंदा नीचे आता है, डॉज करता है, फिर वो साड़ियाँ बंदी आती है उसकी टीचर, और फिर वो एक्टर सुनील शेट्टी, भाई क्या एक्टिंग तभी से है बंदा भाई. ओवरऑल मूवी में सब कुछ था भाई, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस. आई मीन ओम शांति ओम में भी काफी कुछ था, बट दीपिका पादुकोण थी यार. आई थिंक आई विल गिव यू इवन अ बेटर वन, Ravan. I think Ravan as a movie was way ahead of its time in terms of story, in terms of action, in terms of all that, you know, that VFX and all. Yeah. I think that the amount that was invested in it, and actually some people liked it, but I think जब उसको इतने खराब reviews मिले just because it tanked at the box office, तो you know people were like कि नहीं अच्छी नहीं है. Yeah. But I think the movie was fantastic. Yeah. And भाई मतलब SRK ने एकॉन को बुलाया
उससे हिंदी में गाने गवाए, चमक चलो, क्रिमिनल एंड ऑल बैंगर सॉन्ग्स. एंड नॉट टू फॉरगेट अर्जुन रामपाल डांसिंग टू चमक चलो इन दैट रेड साड़ी. आई मीन किलर मूव्स. उससे बेहतर डांस मैंने कोई भी एक्टर का देखा ही नहीं. टॉप टियर मूवी भाई, टॉप टियर. So on that note, because of low budget, our camera has died again. So thank you for joining us. This was the this or that segment. Hope you guys liked it, and throw some recommendations in the comments, and we'll do your recommendations next time. Peace.